Hello students. So in the previous video we have started the second form of business organization, that was partnership. We have done the features of partnership. So I wish that you have understood all the full meaning of partnership. What is the concept of partnership firm? Partnership firm is that firm or that form of business organization in which two or more than two partners come together to do business to earn profit. Today we will see what are the merits and demerits of partnership. Means what are the advantages we get from partnership type of firm and what are the disadvantages if we are into a partnership firm. First we will see what are the merits. First is easy formation. Easy formation means it is very easily formed. As with sole proprietorship, in sole proprietorship also we have seen this point. It was very easy to start a sole proprietorship firm because a person alone can take all the decisions, whatever money he need, where he wants to do business, what kind of business he wants to do. Every decision is taken by a single person and he can start it because there are no legal formalities related to a sole proprietorship firm. In the same manner, in partnership firm also, there is no need to go for this registration and all. It is beneficial for a firm to get registered. मतलब हम partnership firm का registration अगर करवाते हैं तो it will be good for us because in future अगर partners के बीच में कोई disputes हो जाते हैं तो it will be easy for the partners to take the case to the court because they have registered it. Until and unless you have registered your partnership firm, you cannot sue your partner. You cannot take the case into the. You cannot sue it. You cannot take case into the court because you don't have any proof. But if we have our firm registered, we can easily sue our partner if he is doing wrong to us. So it will be always beneficial if we get our partnership firm registered. But it is not compulsory. मीन्स आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यू हैव टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप. ओके, सो इट इज़ योर विल. That is why we can say if two or more than two partners wants to start a business into partnership firm, they can do so very easily. Means it is not required to get their firm registered. Okay. So the first point is कि बहुत easy होता है ये business start करना. Suppose आप और आपके friend को अचानक मन कर गया कि चलो हम लोग कोई business start करते हैं, इकट्ठे मिलके कोई काम करते हैं. You are good at something, he is good at some other thing, and you both can make something good out of it. तो आप मिलके अगर काम करने की सोचते हो तो आप बहुत आसान है आपके लिए. आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है यू जस्ट ऑल प्लान इट आउट कि आप कैसे उनको मीट करोगे, सारी अपनी जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं. हु विल गेट हाउ मच मनी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट और लॉसेस और हाउ मच मनी बोथ ऑफ यू विल बी putting into the business. Everything will be decided by your own. You don't have to go for any registration, so it will be easy for you to start the business. Second is balanced decisions. Balanced decisions means decisions are taken very properly. Balanced का मतलब क्या होता है? Balanced means सोच समझ के लिया गया फैसला. Means whenever there are some decisions to be taken in the business, when there is only one person to take the decision, it will be difficult for a single person because he may not think some points which जो उसके दिमाग में आएंगे ही नहीं. He may not think that much. But when two or more heads, जैसे बोलते हैं ना जितने heads उतनी ज़्यादा thinking होती है. तो if there are two or more partners and they all will be taking the decisions collectively, then that decision will be a balanced decision, a good decision, because when two or more than two people take some decision, it will be easy because it will be every point will be taken into consideration by all of them. एक दिमाग उतना अच्छा शायद ना सोच पाए जितना दो या दो से ज़्यादा दिमाग सोच लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिमाग सोचेंगे तो खिचड़ी भी पक सकती है. सो ये भी हम एक पॉइंट देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली 2 or 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स, 4 मिल के लिए दैट इज़ ओके, बैलेंस डिसीजन होता है. लेकिन अगर 50 पार्टनर्स हैं, वी हैव अ लिमिट कि 50 पार्टनर तक हो सकते हैं. इफ देयर आर 50 पार्टनर्स इन द फर्म एंड ऑल ऑफ देम आर putting their own points, then it will be difficult to take decision. तो वो एक negative point भी हो सकता है. But when there are few partners, 2, 3, 4 partners, it will be a positive point because all of them will be taking the decision, very proper decision, because everyone will be thinking on their own. Next point is more financial resources. More financial resources means
पैसा ज्यादा मिलेगा। कैसे? इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर वाज ओनली वन पर्सन, तो ही वाज द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू अरेंज द मनी, बिकॉज वो अकेला ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अकेला ही बिजनेस चला रहा है, तो ही इज द ओनली पर्सन who will be investing the capital, whether from his own pocket or from the outside sources, from bank loans or etc. But here, when in partnership firm there are more than one member in the business, there are 2 members or 3 members or 4 members, all of them are putting in capital, so capital resources will be more, financial resources will be more. Why? Because जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पैसा भी आएगा, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी कुछ सेविंग्स होंगी, सभी अपने नाम से थोड़ा बहुत लोन ला सकते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना पैसा भी ज़्यादा आएगा। सो दिस इज अगेन अ मेरिट ऑफ पार्टनरशिप। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो हम जैसे मैं आपको जब हम सोल पार्टनरशिप कर रहे थे तब भी आपको बताया था कि हर फॉर्म के बाद जो नया फॉर्म आता है वो पुराने फॉर्म्स के डीमेरिट्स को हटाने के लिए आता है। जैसे आप अगर आज कोई काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि इस काम में ये कमी है, ये नुकसान है, तो आप आगे जब इम्प्रूवमेंट लाओगे किसी उस चीज के ऊपर, कुछ नया करोगे, तो दैट इम्प्रूवमेंट विल बी ओवर द ट्रेडिशनल मेथड्स। जो पुराने आपके तरीकों में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ही आप नया तरीका अपनाते हो। इन द सेम मैनर जब सोल प्रोप्राइटरशिप था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट वाज द ओल्डेस्ट वन, द इजीएस्ट एंड द मोस्ट एशियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पे जो डीमेरिट्स थे उनको हटाने के लिए पार्टनरशिप आया। सो नाउ पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको लगेगा जो इसके मेरिट्स हैं लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के डीमेरिट्स थे। लाइक बैलेंस डिसीजन, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के डीमेरिट में यू हैव स्टडीड वन पॉइंट, अनबैलेंस डिसीजन पढ़ा था। उसमें क्या था कि बिकॉज अ सिंगल पर्सन इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस, ही मे नॉट टेक देम वेरी प्रॉपरली और अ वाइज डिसीजन। वो वाइज डिसीजन नहीं हो सकता क्योंकि वो अकेला ले रहा है, हो सकता है वो कुछ गलत डिसीजन ले सकता है। उस पॉइंट को, उस डीमेरिट को हमने यहाँ पे उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाए और उसको हमें मेरिट बना दिया कि यहाँ पे क्योंकि तो एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए हमारे पास डिसीजन जो होंगे हम वो बैलेंस ले सकते हैं। अगेन दिस वन, इन सोल प्रोप्राइटरशिप आपने एक डीमेरिट देखा था, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज और लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मीन्स वहाँ पे एक पर्सन है तो कैपिटल या फाइनेंस जो होगा वो भी लिमिटेड होगा, बिकॉज एक इंसान कम ही ला सकता है, ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकता। That point of that demerit of sole proprietorship is removed here, and this is the merit of partnership. Here you will get more financial resources. The fourth point is division of risk. This point is also an improvement over the sole proprietorship. वहाँ पे आपने demerit देखा था कि undivided risk means all the risk, जितना भी बिजनेस में लॉस होगा वो सारा के सारा एक सिंगल बंदे को उठाना पड़ेगा, बिकॉज वन पर्सन इज डूइंग द बिजनेस. If he is the owner of all the profits, he will alone have to bear all the risk also, bear all the losses also. But here, when there are more than one person who are running the business, who are putting money in the business, so risk is also divided among all of them. मतलब अगर जो भी बिजनेस में लॉस होगा यहाँ पर वो एक अकेला बंदा नहीं भरेगा, यहाँ पे all the partners will be suffering that loss, all the partners will be bearing that loss in the proper ratio. जो भी उनका रेशियो डिसाइड हुआ है, सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, 50-50 का रेशियो है कि प्रॉफिट होगा तो 50-50 करेंगे, लॉस होगा तो भी 50-50 करेंगे। तो जो लॉस होगा वो एक अकेला इंसान नहीं भरेगा, एक अकेला पार्टनर नहीं भरेगा, दोनों पार्टनर मिलके हाफ हाफ भरेंगे। तो दिस इज अगेन अ मेरिट ऑफ पार्टनरशिप कि यहाँ पे जो रिस्क होता है या लॉस होता है वो सब में डिवाइड होता है। ओके, द लास्ट पॉइंट इज सीक्रेसी. Now this is the same point as in sole proprietorship. Sole proprietorship का भी आपने एक मेरिट पढ़ा था कि वहाँ पर ये आपने पढ़ा था कि ये sole proprietorship का एक सीक्रेसी है कि वो अपने, एक मेरिट है कि वो अपने सीक्रेट्स अपने तक रख सकता है, जो भी उसके ट्रेड सीक्रेट्स हैं या जो उसके अकाउंट्स हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू शो हिज अकाउंट्स टू, he don't have to show his accounts to anyone, not even government. Only if government asks them to show it, in case they are doing something illegal, then only they have to show, otherwise they are not supposed to show their accounts to anyone or share their secrets with anyone. The person can keep it to himself. Here also you can see the merit of partnership, secrecy. Now यहाँ पे जो secrecy रहेगी वो एक पार्टनर में नहीं रहेगी, सब पार्टनर्स के बीच में रहेगी. Means here also whatever secret is there in the business, it will be shared among only the partners.
जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 या 3 या 4, उन सब में ही ये सीक्रेट जो है वो शेयर होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। एंड इवन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर ओनली शेयर्ड विथ ऑल द partners alone, and they are not shared with any outsider, or their accounts are not shown to any outsider. Okay, so I hope you understood all the 5 points of merits of partnership. Now we will see what are the demerits. Now the demerits. Demerits of partnership. First is unlimited liability, like we have seen in sole proprietorship also. Unlimited liability, अभी तक आपने ये वर्ड बहुत बार पढ़ लिया है, तो I hope अब आपको मेरे को जो दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स you cannot escape of any loss saying that it is not yours because you have only invested this much capital, so you are only liable to that much amount of capital, और extra loss आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। Suppose you have entered into a partnership firm with 50,000 rupees and the loss of the firm is 75,000. आपका जो शेयर आया, मतलब टोटल लॉस का जो आपका शेयर आया, दैट इज 75,000. सो यू कैन नॉट से कि मैंने तो 50,000 से एंटर किया था तो आई विल ओनली पे 50,000, उसके अलावा मैं पे नहीं करूँगा. द एक्स्ट्रा लॉस, 25,000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, ये भी आपको ही भरना पड़ेगा. सो हियर यू कैन नॉट एस्केप ऑफ द लाइबिलिटी, द एक्स्ट्रा लाइबिलिटी. जितनी भी लॉस, अगर कोई भी लॉस हुआ है तो पूरा की पूरा लॉस जो है वो पार्टनर्स में मिल के बढ़ता है, सब में बढ़ जाता है उनके रेशियो में. यू कैन नॉट एस्केप ऑफ इट. So this point again here is unlimited liability as in sole proprietorship. Next is limited resources. अब आप सोचोगे कि अभी तो हमने पढ़ा था मेरिट में कि financial resources जो हैं वो unlimited, there are many much more of financial resources. लेकिन यहाँ पे हम ये point जो पढ़ रहे हैं, अब आप एक चीज़ समझना कि हम जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो 2 कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं. एक हमसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मिडिल क्लास है, तुम जो आपको पता है हमारी सोसाइटी में 3 क्लास होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. ठीक है, जो मिडिल क्लास होती है दे आर, अगर हम बोले कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं देन लोअर क्लास, मतलब अगर हम उनको लोअर क्लास के साथ कंपेयर करें तो दे आर बेटर देन द लोअर क्लास इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल. इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल पोजिशन, दे आर बेटर देन लोअर क्लास बट दे आर लेस देन द अपर क्लास. तो जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम 2 अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते हैं, तो एक के साथ वो बेटर है. मतलब इफ वी कंपेयर मिडिल क्लास विथ लोअर क्लास, मिडिल क्लास इज बेटर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास इज बेटर देन लोअर क्लास. बट इफ वी कंपेयर मिडिल क्लास टू अपर क्लास, देन अपर क्लास हैज बेटर पोजीशन एंड मिडिल क्लास हैज not a little lesser position. In the same manner here also, when we are comparing partnership with sole proprietorship, जब हम पार्टनरशिप को sole proprietorship के साथ कंपेयर करते हैं तब हम ये बोल सकते हैं कि they have more financial resources, because sole proprietorship में only one owner होता है तो financial resources are limited, but in partnership there are more partners, 2 or 3 partners or till 50 partners, so the financial resource in partnership is more than sole proprietorship. But when we compare partnership with other, जो अभी आपके आने वाले हैं फॉर्म्स जो आगे आएंगे, like if you talk about कंपनी क्या होती है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, MNCs होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है. सो वहाँ अगर हम पार्टनरशिप को कंपनी से कंपेयर करें तो हम ये पॉइंट बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स, वी आर कंपेयरिंग partnership with sole proprietorship and we are saying ki yes, they have more financial resources. But when we are talking about demerits of partnership, we are comparing partnership with company and then we can say it has limited resources. मतलब इनके पास resources कम होते हैं than company, because company has huge amount of capital. So here when we are entering into partnership firm, you have to understand that we can only have a limited resource or a limited size of business. मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो, हम लार्ज स्केल बिजनेस करना चाहते हैं, हम एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस को, तो वो पार्टनरशिप में नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे. फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ हार्मनी. What is the meaning of the word harmony?
हार्मनी मीन्स पीस, शांति। लैक ऑफ हार्मनी, अब लैक ऑफ हार्मनी क्यों होगा? लाइक इफ यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे एक सोलो था जो भी ओनर था, उसको ये पता था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द डिसीजंस, चाहे वो गलत हो या सही हो, दे आर माई डिसीजंस, उससे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन माई बिजनेस बिकॉज आई एम द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। बट हियर व्हेन सम पार्टनर्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर एंड वर्किंग, अगर एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया था, ठीक है, उसने सबके साथ मिलके लिया था, अकेला वो नहीं ले सकता सबके रजामंदी या सबके कंसेंट के बगैर, लेकिन अगर उन सब ने उनका डिसीजन मान लिया था और उन्होंने वो डिसीजन ले लिया था और वो डिसीजन अगर फ्रूटफुल नहीं रहा, इफ दैट डिसीजन लेड टू सम लॉस ऑफ द फर्म, देन उनमें क्या आ जाता है, देन एवरीवन विल ब्लेम दैट पर्सन कि आपने ये डिसीजन लिया था, आपकी वजह से ऐसा लॉस हुआ है। तो उसमें क्या होगा, उनके बीच में पीस खत्म हो जाएगी, हार्मनी खत्म हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म कि उनके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन रहे। कॉर्डियल रिलेशन मीन्स दे शुड हैव अ गुड रिलेशन विद ईच अदर, दे शुड ट्रस्ट ईच अदर, दे शुड ऑलवेज बी वन। बट वेन सच थिंग्स हैपन, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप में झगड़े होते ही हैं, बट इट कैन हैपन। अगर कोई लॉस आ गया या कोई मेंटल प्रेशर आ गया या एनीथिंग बैड हैपेंस इन द फर्म, देन देयर कैन बी सम डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। और अगर ऐसा होता है तो वहां पे देन देयर वोंट बी एनी पीस, और इस वजह से हो सकता है बिजनेस को वो लोग बंद भी कर दें, पार्टनरशिप को खत्म भी करने की नौबत आ सकती है। सो दिस कैन हैपन। So this is again a demerit of partnership, means there can be some disputes among the partners which can lead to the closure of the business. Next point is lack of continuity. जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्लोजर हो सकता है बिजनेस का, तो वही बात यहाँ आती है, lack of continuity. Continuity means which goes on. मतलब हम ये नहीं सोच, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पर भी अगर एक सोल ओनर है और उसकी डेथ हो जाती है या वो बिजनेस को नहीं चला पा रहा है तो वो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट आता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स पार्टनरशिप में अगर झगड़े हो जाएं तो पार्टनरशिप बंद हो सकती है, या अगर पार्टनरशिप, फॉर एग्जाम्पल देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स एंड वन ऑफ देम डाइज और वन ऑफ देम जस्ट लीव्स द पार्टनरशिप, देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है बिकॉज वन person cannot run a partnership firm. There should be at least 2. So if there are only 2 partners in the firm and one of them dies or one of them leaves the partnership, then the partnership should be or it automatically closes. मतलब जैसे एक पार्टनर चला जाता है वो पार्टनरशिप खुद ही खत्म हो जाती है, वो पार्टनरशिप फिर रहती ही नहीं, ठीक है। So this is again a demerit of partnership that it can be closed down. हम ये नहीं सोच सकते कि एक बार ये स्टार्ट हो गई तो हमेशा रहेगी ही। Last point is lack of public faith. Now what do you mean by public faith? लोगों का भरोसा। Now what happens, अब ये इस पॉइंट में भी आपको कंपनी का थोड़ा सोचना पड़ेगा बिकॉज क्या होता है when we are talking about company, अभी आपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा नहीं है इसलिए आप अभी समझ नहीं पाएंगे, तो अभी हम कंपनी को चलो रहने देते हैं। आई विल जस्ट टेल अबाउट दिस पॉइंट कि इस पॉइंट में हम ये समझाना चाहते हैं कि बिकॉज देयर इज सीक्रेसी इन पार्टनरशिप, व्हेन whatever partners are doing in the business they are not showing outside. वो अपने फर्म के जितने भी अकाउंट्स हैं they are not bound to show other people. जैसे हमने पढ़ा था सीक्रेसी पॉइंट में कि they can keep all the secrets with themselves, they are not bound or they are not supposed to show their accounts to general public. तो यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक का उनके ऊपर फेथ नहीं आ पाता बिकॉज पब्लिक को पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। पब्लिक डो नॉट नो कि बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फर्म, आर दे प्लानिंग समथिंग गुड, और व्हाट जो भी वो कर रहे हैं उसमें उनको फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर वो नुकसान शो कर रहे हैं तो सच में नुकसान हो रहा है, वो झूठा तो शो नहीं कर रहे हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज दे आर कीपिंग सीक्रेट्स विद देम, सो पब्लिक का फेथ उनके ऊपर नहीं आ पाता। पब्लिक उनके फर्म में इन्वेस्ट करना चाहे या अपना पैसा कुछ उसमें लगाना चाहे तो वो नहीं लगा पाती बिकॉज उन्हें लगता है कि पता नहीं ये बिजनेस कितना अच्छा कर रहे हैं या इनका क्या अंदर चल रहा है, दे डोंट नो एनीथिंग। तो पब्लिक का फेथ उसमें नहीं आ पाता। अंडरस्टूड? तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑल्सो। आज हमने मेरिट्स किए, डीमेरिट्स किए हैं। जस्ट गो थ्रू, अब आपने बुक्स ले ली होगी, नहीं लिए तो प्लीज गेट इट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज अब आपका काफ़ी सिलेबस हो चुका है, तो अब आपके पास बुक्स आ जानी चाहिए। आई
बिलीव कि बुक्स अवेलेबल होंगी मार्केट पे. अगर नहीं है तो ट्राई टू गेट old books from old students so that you can start studying. Okay, so in today's video we just have done demerits and merits of partnership. Just go through them once and we will continue in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.